Namaste to Principal Sir of DAP Public School Thodi and all my dear students of class 8. Now I am going to discuss a lesson of class 8. The name of the lesson is The Luncheon and the writer is William Somerset Maugham. This one is the third part of my video. Previous 2 days done something, and this one is the third or last part of my video. So the author and the lady appeared in the restaurant, and in the restaurant the lady was demanding one after another the menu, and she was telling herself that she is eating one thing only, or she is eating one thing in the luncheon, not more than that. Again and again she is telling, and she is repeating, she is insisting to eat more and more caviar, salmon, caviar, asparagus, and so many things. Her desire is increasing moment after moment, and she is demanding coffee and everything one by one. And the condition of the author was very poor, and he was thinking what would happen and what would come the bill and how he will pay the bill. It will be very dangerous situation with him, and after 1 month how the rest year or month will go on because of shortage of money. Here this one is the third part of my video. I am not in the least hungry, my guest sighed. तो मेरा गेस्ट जो दीर्घ श्वास लेके बोली कि आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, बहुत ही कम हंग्री नहीं है. आई एम नॉट इन द लिस्ट हंग्री, अल्प और अल्पतम हंग्री, भूखा में नहीं हूँ. माई गेस्ट साइड, बट इफ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परेगस. अगर आप जिद करते हैं तो आई डोंट माइंड में अपने मन में कुछ नहीं करेंगे. हैविंग सम एस्परेगस, तो एस्परेगस अ टाइप ऑफ एक प्रकार का जो वेजिटेबल है, साग है. तो ये साग हम लेंगे, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप इंसिस्ट करेंगे तो लेंगे. आई ऑर्डर देम, तो मैंने ऑर्डर दिया. आर नॉट यू गोइंग टू हैव एनी, अच्छा ये और आप लेने चाहते हैं. नो आई नेवर ईट एस्परेगस, मैंने एस्परेगस नहीं खाती हूँ. आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, तो कुछ आदमी है जो मेरे जैसा ही पसंद नहीं करते हैं. द फैक्ट इज, घटना ही है, यू रूइन योर पैलेट. Palate means the top part of the inside of your mouth. Talu. Your talu. The fact is you ruin your palate by all means. तो तालू को अपना ध्वंस किए हैं by all the meat you eat. जिस प्रकार से आप मांस खाते हैं. We waited for the asparagus to be cooked. तो asparagus बनने के लिए समय लगा, इसके लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ा. Panic seized me. तो panic is sudden feeling of fear that cannot be controlled. आतंक, तो आतंकित हो गया मैं. आतंक seized me मेरे को कब्जा कर लिया, तो मैं बहुत ही आतंकित हो गए, तो आतंक मेरे को कब्जा कर लिया. It was not a question now how much money I should have left over for the rest of the month. तो ये बहुत ही, it was not a question, ये प्रश्न नहीं था. How much money I should have left, कितना पैसा मेरे लिए रहेगा over the rest of the month, महीना का बाकी समय के लिए. but whether I had enough to pay the bill, तो बाकी महीने कैसे चलेंगे, ये तो बहुत ही चिंता का विषय था. लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता था कि जितना बिल होगा वो मेरे पास रहेगा, उसको पे कर पाएंगे कि नहीं. It would be mortifying to find myself 10 francs short. अगर 10 फ्रैंक शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो ये मेरे लिए mortifying means अपमानजनक होगा. Francs means here the unit of money that is used in France, Switzerland, etc. फ्रांस का 2 पेंस का सिक्का, तो 2 पेंस का सिक्का, तो 10 फ्रांस का अगर it would be mortify, अपमानजनक हो जाएगा अगर देखा जाएगा कि मेरे पास 10 फ्रैंक का अभाव है. तो and be obliged to borrow from my guest, और मैं आभारी बन जाऊंगा उसके उधार करने के लिए. मेरा गेस्ट के साथ. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके,
to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. तो मैं आभारी बन जाऊंगा कि मेरा गेस्ट के पास उसको उधार करना पड़ेगा. I could not bring myself to do that. तो इसी तरह सिचुएशन हम नहीं कर सकते हैं. I knew exactly how much I had. तो मैंने तो बढ़िया से जानते थे कि कितना पैसा मेरे पास था. And if the bill came to more, अगर बिल उससे ज्यादा आता तो I made up my mind, मेरा मन को सेट कर लिया था that I would put my hand in my pocket, मेरा हाथ पॉकेट में रखेंगे and with a dramatic cry, और नाटकीय और रोना रोएंगे, start up, रोने शुरू करेंगे and say it had been picked, और बोलेंगे कि मेरा पॉकेट मार हो गया. Of course it would be awkward, तो ये भी अद्भुत खराब लगेगा, अभी ग्रुप लिखा है दिखेगा if she had not money enough either to pay the bill. अगर वो लेडी के पास भी अगर पैसा पेमेंट करने के लिए नहीं रहेगा तो ये बहुत ही खराब होगा. Then the only thing would be to leave my watch. तो और एक चीज रहेगा कि मेरा घड़ी को जो देना होगा रखना पड़ेगा and say I would come back and pay later. तो घड़ी को बंधक के स्वरूप उसको रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बाद में आएंगे और ये घड़ी ले जाएंगे. The asparagus appeared. तो अभी जो asparagus बन रहा था, कुक हो रहा था, वो आ गए, हाजिर हो गए. They were enormous. तो ये भी विशाल बड़े बड़े थे. Succulent, रसीला था. Succulent means juicy, रसीला, बहुत ही रस भरा हुआ था. And appetizing, स्वादिष्ट. Appetizing food that looks attractive, जो बहुत ही स्वादिष्ट है. The smell of the melted butter tickled my nostrils. तो गंध आ रहा था किसका? न मेल्टेड बटर का, जो पिघला हुआ मक्खन का. tickled my nostrils, जो सुरसुराया था मेरा नाक को, नासिका छिद्र का सुरसुरा दिया था छिद्र को. But all I could do was to watch my guest. तो मैं क्या कर सकता था? खाली मेरा गेस्ट को देख ही सकता था. Thrust them down a large mouthful, बड़ा ग्रास लेके अपना मुंह में ठेल रही थी. At last she finished. और इसी तरह वो खत्म कर ली. Coffee, I said. मैंने पूछा कि कॉफी पियेंगे? Yes, just an ice cream and coffee. तो आइसक्रीम भी जोड़ दी, बोला आइसक्रीम और कॉफी पियेंगे. She answered, जवाब भी. I was past caring now. मैं अब देखभाल कर रहा था. So I ordered coffee for myself and ice cream and coffee for her. तो कॉफी मेरे लिए और उसके लिए, लेडी के लिए आइसक्रीम और कॉफी का ऑर्डर दिया. You know there is one thing I thoroughly believe in. तो आप जानते हैं कि एक चीज बिल्कुल मैंने विश्वास करता हूँ, करती हूँ. She said, वो बोली. As she ate the ice cream, the आइसक्रीम खा रही थी. One should always get up from a meal. तो मील खाते हुए उठ जाना चाहिए. Feeling one could eat a little more. जो खाना खाते समय जो आदमी खाना खाएंगे, जो और भी कुछ खा पाएंगे, तो इसी तरह स्थिति में उसको खाना छोड़ देना चाहिए, पूरा पेट भर के नहीं खा के. Are you still hungry? I asked faintly. तो स्पष्ट रूप से मैंने पूछा कि अभी भी भूखा है आप? Oh no, I am not hungry. बोले नहीं, मैंने भूखा नहीं हूँ. You see, आप देख रहे हैं. I don't eat luncheon. दोपहर का खाना मैं नहीं खाती हूँ. I have a cup of coffee in the morning. सुबह में एक कप कॉफी लेते हैं and then dinner. उसके बाद रात का खाना खाते हैं. But I never eat more than one thing for luncheon. तो दोपहर खाना में एक चीज से ज्यादा दूसरा चीज कभी नहीं लेती हूँ. I was speaking to you. मैंने आपके साथ बात कर रहा था. Oh I see. मैंने समझ गए. Then a terrible thing happened. एक भयानक चीज हो गया. Terrible, very unpleasant, causing great shock. एक भयानक चीज हो गया. While we were waiting for the coffee, जब कॉफी के लिए इंतजार कर रहा था, the head waiter, जो खाना परोसने वाले में से जो हेड था, वो came up to us, हम लोग के पास आए, bearing a large basket, एक बड़ा सा टोकरी वहन करके लेके आया, full of huge peaches. तो बड़ा उसमें पीच था, एक फल था, आड़ू फल, एक फल था, पीच. They had the blush of an innocent girl. तो वो जो लोग लेके आए, वो लोग शर्मा गए जो मासूम लड़की को देख के. They had the rich tone of an Italian landscape. तो बहुत ही अच्छा सुर में वो लोग जो इटालियन भूदृश्य में थे, उसके बाद उसी प्रकार वो लोग अपना टोन देखा के बताए. But surely peaches were not in season then. तो पीच का उस समय सीजन नहीं था. Lord knew what they cost. लेकिन भगवान जानते उसका दाम कितना होगा, बहुत ही महंगा होगा. I knew too. ये मैं भी जानता था. Little later, कुछ देर बाद, for my guest, मेरा जो अतिथि, going on with her conversation, बातचीत करते हुए, absent-mindedly, अनमनापन से, took one, एक ठो उठा ली. You see, you have filled your stomach with a lot of meat.
तो मैंने बताया कि आप देखिए आप बहुत ही का परिमाण ये मांस खा लिए हैं, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, और मैंने क्या किया क्या खाया, एक तुच्छ आलू चॉप खाया। एंड यू कैन नॉट ईट एनी मोर, आप से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। बट आई हैव जस्ट एट ए स्नैक, लेकिन मैंने खाली नाश्ता ही जैसा किया। एंड आई शैल एंजॉय पीच, और मैं विद पीच एंजॉय करेंगे। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट, द बिल आया, अब जब मैंने पे करेंगे, आई फाउंड दैट, मैंने देख पाया, आई हैड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। तो आई हैड ओनली, मेरा हुई पर्याप्त था, फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, तो थोड़ा अपर्याप्त झुकाव था। इनएडिक्वेट मीन्स नॉट गुड इनफ। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट, तो उसका आंख विश्राम कर रहा था। तो इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स, तो देख लिए, तुरंत मेरे पास देख लिए। जब 3 फ्रैंक मेरे पास था, आई लेफ्ट फॉर द वेटर, वेटर के देने के लिए। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मैंने देख पाया कि वो मेरे को घटिया समझी। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जब भोजनालय के बाहर में बात किया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, जो पूरा महीना मेरे पास पड़ा हुआ था। एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट, और पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं था। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण फॉलो कीजिए। सी सेड एज वी शुक हैंड, जब हम लोग हैंडशेक किए तब बताएं। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन, लंचियन में दोपहर खाना में एक चीज से ज्यादा नहीं खाएंगे। आई शैल डू बेटर देन दैट, हम इससे ज्यादा अच्छा करेंगे। आई रिटॉर्टेड, मैंने प्रतिवाद किया। रिटॉर्ट टू रिप्लाई क्विकली इन एंग्री और अम्यूजिंग वे, प्रतिवाद किया। आई शैल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, आज रात का खाना में कुछ नहीं खाएंगे। ह्यूमरिस्ट, सी क्राइड, ह्यूमरिस्ट ह्यूमरस राइटर, परफॉर्मर और आर्टिस्ट, हास्यरस लेखक। ह्यूमरिस्ट, सी क्राइड, लेडी बोली, वह चिल्ला के, गेली प्रसन्नता से, गेली हैप्पीली चीयरफुली, प्रसन्नता से। जंपिंग इनटू ए कैब, अपना गाड़ी में बैठे जंप करते हुए। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, आप एक हास्यरस लेखक है। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन मेरा लास्ट में क्या था, मैंने एक बदला लिया। टुडे सी वेज 21 स्टोन, आज उसका वजन 21 स्टोन हो गया। तो 1 स्टोन इक्वल टू 6.3502931 किलोग्राम। तो 21 स्टोन मीन्स 133 केजी। तो ये थोड़ा एग्जेजरेशन है, तो ये बढ़ाने के बोलने के लिए कि मैंने ये उसका बदला लिया, तो ये सब फास्ट फूड खाने के वजह से उसको वजन वेट थोड़ा ज्यादा हो गया। So this one is the third part of my video, and homework. Students, number 1, write word meaning in their homework notebook. Word meaning लिखेंगे, go through the lesson very nicely, scrutinizely, बहुत ही अच्छा से टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको समझने प्रयास करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछेंगे। और राइट आंसर्स फ्रॉम एक्सरसाइजेस इन क्लास वर्क नोटबुक, क्लास वर्क नोटबुक में अपना जो एक्सरसाइज के आंसर लिखने प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।